Hello, dear children. Welcome to the class. Now, in today's session, we are going to solve certain queries which we have received from our students. The first question which we are going to take up today is, it is Kabir and Zorawar and Parul are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capitals as on 1st April 2020, कबीर की दे रखी है बेटा 5,20,000, जोरावर की दे रखी है 3,20,000 and पारुल की capital is 2 lakh. Now, the capital which is given in the question is opening capital since the date mentioned is 1st April 2020. The partnership deed provided as follows. First is Kabir and Zorawar each will get a salary of rupees 24,000 per annum. Parul is going to get a commission of 2% on sales. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. And 10% of the divisible profit is to be transferred to the general reserve. Sales for the year ended 31st of March 2021 were rupees 50 lakh. अब देखिए बेटा 50 lakh सेल्स दे रखी है और पारुल की कमीशन इज 2% ऑफ सेल्स. Drawing by each of the partner during the year. Drawing during the year was 60,000 and net profit for the year was rupees 1,55,500. Now we have to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st of March 2021. So this question is question number 52, which is given on page number 2.91. We have taken this question from the book T.S. Garewal 2021 edition. Now see, according to partnership deed, there are three partners, Kabir, Zorawar and Parul. Let's do the working of this question first. Now, तीन partners हैं, Kabir, Zorawar और Parul. कबीर, जोरावर, पारुल. और पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशंस मिलनी है, सबसे पहले जो एप्रोप्रिएशन दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है सैलरी. सैलरी मिलनी है कबीर को 24,000 पर एनम पूरे साल की और जोरावर को भी 24,000 पर एनम, दैट मीन्स फॉर द होल ईयर. नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमीशन. पारुल को कमीशन मिलनी है और क्वेश्चन में दिया है कमीशन कितनी मिलनी है 2% ऑफ योर टर्नओवर और टर्नओवर और सेल्स. और सेल्स मुझे क्वेश्चन में दी हुई है फॉर द ईयर वाज 50 lakhs. अगर मैं 2% ऑफ 50 lakhs कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 10 lakhs. Sorry, it is 1 lakh. Commission is 1 lakh to Parul. 2% of 50 lakh is 1 lakh. So this commission is given to Parul. Next question में दे रखा है interest on capital. Interest on capital is to be allowed at the rate of, it's given at the rate of 5% per annum. अब ओपनिंग कैपिटल हमें हर एक पार्टनर की दी हुई है. कबीर की ओपनिंग कैपिटल इज 5,20,000. 5,20,000 पे if we'll calculate 5%, so this amount is 26,000. For the next partner Zorawar. जोरावर का हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो गिवन है दैट इज 3,20,000.
और इसका अगर हम 5% कैलकुलेट करें, सो दिस अमाउंट इज 16,000. देन हमारा थर्ड पार्टनर है पारुल. पारुल की कैपिटल इज 2 लाख. 2 लाख पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस अमाउंट इज 10,000. So these are the appropriations which are to be given. Now see, अगर मैं टोटल अभी एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करूं, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमने पार्टनर से लेना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है. लेट्स लीव वन लाइन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स which are to be charged from the partner, it is at the rate of again 5% per annum. Fine. और पार्टनर की ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000. सो बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूं 60,000 पे 5%, and this is the drawing of the partner during the year, so time factor will be 6/12. So if I'm going to solve this, I will be getting interest on drawing charged by each partner as 1,500. So each partner is charged with 1,500 amount. आपने कैलकुलेशन देख ली. लेट मी राइट इट ओवर हियर. हर एक पार्टनर 60,000 विड्रॉ कर रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% है. ड्यूरिंग द ईयर है तो टाइम फैक्टर फॉर 6 मंथ्स है. एंड दिस अमाउंट इज 1,500. तो हर पार्टनर फर्म को 1,500 रुपीज देगा. फाइन. नाउ and 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve, and your total profit, now see the total profit which is given in the question, net profit is 1,55,500. ठीक है बेटा, ये टोटल हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में. और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देगा फर्म को, तो फर्म का अवेलेबल प्रॉफिट 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500 4,500 से इंक्रीज हो जाएगा. सो जो अवेलेबल प्रॉफिट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स के बीच में अवेलेबल प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज 1,60,000. और अगर मैं ये देखूं कि हमने पार्टनर्स को इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशंस देना कितना है, सो कबीर को देना है हमने 50,000. जोरावर को देना है हमने 16,000 प्लस योर 24,000, इट इज 40,000. और पारुल को हमने देना है 1,10,000. ठीक है बेटा. तो टोटल जो हमारी एप्रोप्रिएशंस है, टोटल एप्रोप्रिएशंस दे आर 50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000. अगर मैं ये देखूं तो टोटल एप्रोप्रिएशंस which is to be given to the partners according to the partnership deed. Fine. Total appropriations हो गई हमारी 50,000 plus 40,000 90,000, 90,000 plus 1,10,000 which is equal to 2 lakh rupees. Fine. 2 lakh की appropriations है. Now clear, this is a case of inadequate profits. हमारे पास जो profits available हैं distribution के लिए वो 1,60,000 है. 1,55,500 नेट प्रॉफिट था और 4,500 पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया, तो अवेलेबल प्रॉफिट मेरा 1,55,500 प्लस 4,500 1,60,000. दिस इज द अवेलेबल प्रॉफिट. फाइन. दिस इज द अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन जब हमने एप्रोप्रिएशंस देखी, जो हमने पार्टनर्स को देनी है, कबीर की 50,000, जोरावर की 40,000 एंड पारुल की 1,10,000, इन तीनों का सम हमने किया तो वो 2 लाख आ रहा है. 2 लाख इज मोर देन 1,60,000. तो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ
inadequate profits. inadequate profits. अब हम इस केस में क्या करते हैं, देखो अगर inadequate profits है तो क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व का पॉइंट दे रखा है, जनरल रिजर्व तो हम बना नहीं सकते क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट हमारा निकला ही नहीं. हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑलरेडी कम है, अवेलेबल प्रॉफिट ऑलरेडी कम है देन द एप्रोप्रिएशन, तो हम जनरल रिजर्व तो बनाएंगे नहीं. सो नो जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड. नो जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड. रीजन हमें पता ही है कि हमारे अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम है. नाउ सेकेंड थिंग इज, जितने भी हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशंस ड्यू टू ईच पार्टनर. और अगर मैं इसकी बेटा रेशियोज निकालूं, ना रेशियो निकालूं कि व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन ईच पार्टनर, रेशियो जो है जिसके अंदर अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो रेशियो विल बी 50,000 is to 40,000 is to 1,10,000. So the ratio is 5 is to 4 is to 11. So what am I going to do is I will now prepare P&L appropriation account जिसके अंदर ये available profit मैं 5 is to 4 is to 11 की ratio में divide करूंगी. So continuing with the solution, let's prepare the profit and loss appropriation account. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो बाय नेट प्रॉफिट 1,55,500. देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय ईच पार्टनर, और हमने कैलकुलेट करी थी हर एक पार्टनर ने 60,000 विड्रॉ किया है. 60,000 पे 5% के हिसाब से फॉर 6 months द अमाउंट वाज 1,500. अभी हमने वर्किंग करके देखी थी. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ईच पार्टनर इज 1,500 ईच. सो हमने टोटल अप किया तो 4,500 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर फर्म को देंगे. तो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट हो गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज 1,60,000. अब हम क्या करेंगे, दिस इज द नेट डिविजिबल प्रॉफिट. फाइन. नाउ हम इसको, क्योंकि हमारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, नाउ दिस नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स in the ratio of 5 is to 4 is to 11. So बेटा कबीर का शेयर आ जाएगा 1,60,000 का 5/20, and this amount when we calculate it is going to be 40,000. Fine. जोरावर का शेयर 1,60,000 into 4/20, and if we calculate this amount, this is going to be 32,000. And last Parul ka share 1,60,000 into 4/20, and this amount is going to be 88,000. And this is how the profit and loss appropriation account is prepared. Total is 1,60,000, and this is how the profit is being distributed between the partners in the ratio of 5 is to 4 is to 1. And again I'll repeat, इस केस में हम जनरल रिजर्व नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि इस केस के अंदर हमारे नेट डिविजिबल प्रॉफिट कुछ निकला ही नहीं. हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट था 1,60,000 वो जो एप्रोप्रिएशंस देनी थी उससे कम था. दिस इज द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट. दैट इज व्हाई वी हैव नॉट क्रिएटेड जनरल रिजर्व. सो दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट. चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज एक्स एंड वाई entered into the partnership on 1st April 2018. Their capitals on
the same day, that is on 1st April 2020, were 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st October 2020, X gave rupees 50,000 as loan to the firm. As per the provisions of partnership deed, first is 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriations was to be transferred to general reserve. Interest on capital is to be allowed at the rate of 12% per annum, and interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. X is going to get a monthly salary of rupees 5,000 and Y will get a salary of rupees 22,500 per quarter. X is going to get, he is entitled to a commission of 5% on sales, and sale of the year for the year were rupees 3,50,000. Profit to be shared in the ratio of their capitals up to rupees 1,75,000 and balance equally. यानी कि जो प्रॉफिट है 1,75,000 तक का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे, और कैपिटल रेशियो है हमारी 2 lakh and 1,50,000 which is equal to 20:15 which is equal to 4:3, और 1,75,000 से अगर ऊपर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स उसको इक्वली शेयर करेंगे. Profit for the year ended 31st March 2021 before allowing or charging interest was 4,61,000 and the drawings of the partners were 1 lakh and 1,25,000 respectively. Pass the necessary journal entries relating to appropriation of profits and prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account. Now in this video we are going to prepare profit and loss appropriation account only, क्योंकि अगर मुझे profit and loss appropriation account बनाना आ गया और मेरा correct बन गया तो definitely I will be able to pass correct journal entry and automatically partners capital account will be prepared. So in this video we are going to prepare profit and loss appropriation account for this question. Now this question is question number 53 given on page number 2.91 from the book T.S. Garewal 2021 edition. अब बेटे इस क्वेश्चन में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बिफोर allowing or charging interest was 4,61,000. So by net profit जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, दिस इज 4,61,000. अब हम एप्रोप्रिएशन देते हैं. सबसे पहले एप्रोप्रिएशन जो हमने देनी है दैट इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देना है. Interest on capital is to be allowed at the rate of 12%. X की कैपिटल हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 lakh and 2 lakh पे 12%. Then we'll calculate 2 lakh का 12%. So this amount is 24,000. Y की ओपनिंग कैपिटल is 1,50,000. 1,50,000 पे 12% interest on capital is going to be 18,000. Next appropriation जो हमने देनी है that is your salary. So salary given to the partners. X is going to get a monthly salary of 5,000. बेटा तो 5,000 monthly salary है तो 5,000 into 12 this is going to be the annual salary. अगर 5,000 per month salary X को देनी है तो पूरे साल की सैलरी, there are 12 months in a year, 5,000 into 12 which is equal to 60,000. Then Y की सैलरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 22,500 per quarter. Now ये per quarter सैलरी है. There are 4 quarters in a year,
सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो एनुअल सैलरी वाई की निकल जाएगी हमारे पास 90,000. फाइन. देन कमीशन, नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन जो हमें देनी है पार्टनर्स को, वो देनी है कमीशन, और कमीशन एक्स को हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 5% ऑन सेल्स. सो 5% ऑन सेल्स, और सेल्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में 3,50,000 की. So when I'll solve it, I'm going to get the figure of commission to be given to X, and this amount is 17,500. अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पर. हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया है वो 4,61,000 है. अब इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और हमारे केस में एक्स ने लोन दिया है फर्म को. इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स ने लोन फर्म को दिया था 50,000 का. अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को फर्म देगी, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है. तो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा जो आपके पास प्रॉफिट आया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगी, दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन दी अमाउंट फिगर. अब 50,000 पे 6% पर एनम के हिसाब से लोन मिलता है अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में नहीं दिया होता. अब क्योंकि पार्टनर ने लोन फर्म को 1 अक्टूबर 2020 को दिया है, सो interest on loan is to be charged for 6 months. Fine. So the figure, the time factor will be 6/12. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1,500. So 1,500 amount is to be subtracted. See 50,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमने चार्ज किया 6% पर एनम के हिसाब से. लोन 1 अक्टूबर को दिया था एक्स ने, तो इन फर्म 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देगी. सो if we calculate the amount of interest on loan will be 50,000 into 6/100 into 6/12, और वो अमाउंट आपकी आएगी 1,500. 1,500 को हम जब 4,61,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 4,59,500. Now next step is to calculate interest on partners drawing. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटे हमारे को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स. एक्स की टोटल ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख की. 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अगर कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन एन एवरेज बेसिस हम 6 मंथ्स पार्टनर से चार्ज करेंगे. सो दिस अमाउंट इज 5,000. सेकेंड पार्टनर की जो ड्रॉइंग्स दी हुई है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 1,25,000. 1,25,000 पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग for 6 months. So this amount is 6,250. Now the second last item of this question में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था बेटा वो ये कह रहा था 20% ऑफ द प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट?
बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस प्रॉफिट में एडेड ना हो, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, but after making appropriations was to be transferred to general reserve, यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ना हो लेकिन सारी एप्रोप्रिएशंस सब्ट्रैक्टेड हो। अब बेटा अगर मैं सारी एप्रोप्रिएशंस का टोटल अप करूं 24,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 17,500, तो ये सारी एप्रोप्रिएशंस का टोटल आ रहा है बेटा 2,09,500। फाइन, ये सारी एप्रोप्रिएशंस मैंने अवेलेबल प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करी और अवेलेबल प्रॉफिट है मेरे पास 4,59,500। फाइन, तो मेरे पास फिगर आ गई 2,50,000 की। फाइन, 2,50,000। अब इस 2,50,000 का 20%, इस प्रॉफिट का 20% हमने कहां डालना है, इस प्रॉफिट का 20% हमने एप्रोप्रिएशन क्रिएट करनी है एंड वी विल ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व। सो वी विल ट्रांसफर 20% ऑफ 2,50,000 टू जनरल रिजर्व एंड दिस अमाउंट विल बी 50,000. The amount is 50,000. Fine. Now our next, the last step is to calculate the net divisible profit and distribute the net divisible profit as per the item number 5, that profit is to be shared in the ratio of their capital up to rupees 1,75,000 and the balance equally. So now what we'll do is we'll first calculate the net divisible profit. Let us take the total of the credit side. So the total of the credit side is 4,70,750 और इसमें से हम सारी की सारी appropriations अगर subtract करते हैं तो हमारे पास net divisible profit आ जाता है 2 net divisible profit। बेटा मेरे पास अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे net divisible profit कैलकुलेट करके इसको क्लोज कर देती हूँ एंड देन आई विल शो कि हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सेकेंड स्लाइड। सो if I'll subtract all the appropriations from 4,70,750, so it is 2,11,750। बेटा कैसे निकला ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमने जो नेट प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को सब्ट्रैक्ट किया 1,500, तो मेरे पास प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट जो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया 4,59,500। उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि पार्टनर्स फर्म को दे रहे हैं, दे आर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अवेलेबल प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, उसके अंदर मैंने 5,000 और 6,250 को ऐड किया तो टोटल क्रेडिट साइड का मेरा आ गया 4,70,750। उसमें से मैंने ये सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व जिनका टोटल मेरे पास आया 2,59,500 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना आ गया 2,11,250। अब बेटा मेरे पास यहाँ स्पेस कम है इसलिए आई एम गोइंग टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट स्लाइड। अदरवाइज आप यहाँ पे इनर कॉलम में भी जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं एक्स और वाई का जो प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। So our net divisible profit is 2,11,250। अब क्वेश्चन में बेटा ये दे रखा है कि 1,75,000 तक का प्रॉफिट तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो मेरे क्वेश्चन में एक्स और वाई की कैपिटल थी गिवन एक्स की 2 लाख, वाई की 1,50,000। सो द रेशियो in which 1,75,000 is to be divided, it is 4:3। फाइन, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया
रिमेनिंग प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 36,250 is the remaining profit. This is to be divided between the partners equally. This profit is to be divided in the ratio of 4:3, and the remaining profit, this is our remaining profit, this is to be divided in the ratio of in equal profit sharing ratio. This is given in the question. So remaining profit 36,250 हम equal ratio में divide कर देंगे. So now x and y, 1,75,000 को बेटा जब मैंने डिवाइड किया in the ratio 4:3 में, तो x का शेयर आएगा 1 लाख. कैसे आया x का शेयर? 1,75,000 into 4/7, 1 लाख. और y का शेयर आएगा, this is for x, for y it is 1,75,000 into 3/7, which is equal to 75,000. Then जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया था 36,250, जब हमने इसको इक्वली डिवाइड किया पार्टनर्स के बीच में, सो शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज 18,125. 18,125. So each partner is going to get, देखिए x का शेयर आया नेट डिविजिबल प्रॉफिट में 1,18,125, और y का शेयर आया हमारे पास 93,125. And you can write this amount in the inner column of your P&L appropriation account. I hope that the solution of this problem is clear to everyone. That's all for today from my side. We are going to take up more problems in the next class. Thank you very much.